मोरल, मोटिवेशन, अर्ली थियोरीज और ये सब करना है, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ मोरल। तो मोरल इज़ ऑल्सो नोन एज ए स्पिरिट कॉर्प्स। व्हेन डिस्कसिंग द मोरल, it is an intangible term, people to maintain belief in the institution or even the oneself. The term may apply for particularly to military personnel, but applicable in the business and in any other organization. So while the term is often used by the authority, obedience, self-discipline and the willpower. So that is according to the Alexander, morale is a capacity of the group people to pull together consistently in pursuit of common purpose. So morale is a layman word. It is a psychological state of the individual or the group. The state may be of highness or the lowness, that is high or low morale. The high morale is confident होता है, spreadness होगी, but low morale is a lack of interest. So morale is a primary group of the concept. It believes that high morale will lead to the high productivity. Professor Keith Davies was point out that there is no always a positive correlation between two. A manager can push for high productivity by using scientific management, close supervision. High may result in the low production. So the opposite can also occur. There can be a high production with low morale. Researchers carried out by the Francis Likert indicated the fact that there can be a different combination of morale, high morale and low productivity, high morale and high productivity. So ये सारे combinations हो सकते हैं. So how can we improve the climate? It help the work group to attain the goal. अगर morale high होगा तो you can attain the goals smoothly and importantly high cooperative manner. So factor affecting the morale, पहला है personal management. How do you manage it? Human relation and the organization का क्या environment है. So that was a clerk working under the authoritarian boss might be happy himself. An organization is a set of function and the assemblage social interacting. It can be the maximum efficiency. There should be a technique to maintain the individual worth and also the message, the health. So these tools and techniques including promotion process of recruitment and grievance redressal. So that was the morale से related होता है, ठीक है. So human relation are concerned with all those elements that affect the interpersonal relationships and leadership. It affects the morale of the organization. The action of the manager exert a strong influence over the morale. Equitable rewards recognition affect the morale. Worker feel comfortable and मोरल की वजह से क्या होता है कि नेगेटिविज्म नहीं होगा, इनकन्सिस्टेंशन नहीं होता है. डिसीजन मेकिंग इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन. फॉर इंस्टेंस इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन विद मेच्योर इंडिविजुअल दैन द डिसीजन शुड बी इंक्लूसिव हो जाएंगे अगर आप मेच्योर हो तो, एंड अगर आप इमेच्योर हो तो इट शुड बी डायरेक्टिव एंड द कोर्सिव. सो मोटिवेशन, नो डाउट इट्स अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ मोरल. अगर आपके पास मोटिवेशन है दैट मीन योर मोरल इज़ हाई. सो विदाउट मोटिवेशन इट वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव द हाई मोरल. In fact, motivation is directly linked to the morale. So when organization is populated with the unskilled worker, अगर unskilled लोग हैं तो repetitive job होगी, top down type का communication होगा. If there is a skilled worker, mature लोग हैं तो communication भी अच्छी होगी और bottom up approach से आप काम करोगे. So organization, the goal of the organization influence the attitude of the employees and likewise a clear structure with well-defined duties and responsibilities. The reputation of the company is another important factor. So a poor attitude जो होगा उससे co-worker will feel negative and such a worker can make each work day unpleasant. He can cause co-worker to think negatively, but organization environment affect the structure. So from the above, it is implied clear that by improving the factor affecting morale, the organization can maintain very high morale. So morale and efficiency. What is morale and what is efficiency? An organization has a set of common goals and these goals can attain the maximum effective organizational performance. So the organization efficiency dependent on the able and willing. You are able and you are willing. So the ability to achieving the purpose and the element of organization efficiency is skill, adaptability and commitment. फ्यूज़न का प्रोसेस हार्ग्रिस ने दिया था. ट्रांजेक्शनल इन्फ्लुएंस दैट वाज गिवन बाय द मैकग्रेगर एंड इंटरैक्टिव इन्फ्लुएंस सिस्टम दैट वाज बाय द लिकर्ट. इंटरैक्टिंग सिस्टम दैट वाज गिवन बाय द लिकर्ट
Morale by large affect the overall efficiency and bringing about the most flexible individual loyalty and enhancing the commitment also. So if you have the morale, then you have goals. You will identify an individual goal is also. आर्ग्रिस एंड बक्के डिस्कस अबाउट द फ्यूज़न. तो ये जो फ्यूज़न प्रोसेस है ये किसने दिया था? क्रिस आर्ग्रिस ने दिया था एंड बक्के ने दिया था. द हाई मोरल ब्रिज द गैप बिटवीन individuals and fusion, like transitional influence given by the McGregor. An interacting system that was given by the Likert. Interacting influencing system that is given by the Likert, leading to the higher efficiency. So case study is there. Vaishali Saxena conducted a field of the study to understand the morale in the civil service. The finding of the field study published by the bureaucracy and the real trauma of the transfer in the Indian administration. Besides, wanted to find the reason for the poor performance of the civil servants and the frequent transfer had by the large demoralized the officers. So now there is a motivation and content the process theory. सबसे पहले अर्ली में मास्लो की थ्योरी आई, नीड हायरार्की, देन हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, मैग्रेगर एक्स एंड वाई, ERG मैकलिन गोल सेटिंग एंड द रीइंफोर्समेंट थ्योरी. नाउ मोटिवेशन इज द वर्ड derived from the mover, that is movement of activity refer to the derived towards the desired goals. It is the internal process of the energize the guide derived from the individual. So now there is the contemporary traditional theory may be either a content or the process theory. एंड मास्लो, हर्जबर्ग, मैकलिन, एल्डेफर एंड मैकलिन की जो थ्योरीज है कुछ यहाँ पे इक्विटी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी एंड पोर्टर आयलर की थ्योरी है. ठीक है. अब्राहम मास्लो की नीड हायरार्की है, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सो अब्राहम मास्लो एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे. इन्होंने 1954 में एक थ्योरी दी थी, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी. हिज नीड हायरार्की थ्योरी वॉज मोस्ट वाइडली नोन फॉर डेवलप द मोटिवेशन. नीड हायरार्की इज़ द फर्स्ट कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड थ्योरी. इसमें क्या होता है कि कुछ नीड्स होती हैं वो फुलफिल होकर न्यू नीड्स में जाते हो आप. तो मास्लो ऑब्जर्व्ड दैट मोटिवेशन थ्योरी इज़ नॉट सिनोनिमस बिहेवियरल, बट द मोटिवेशन आर द ओनली वन क्लास डिटरमाइनिंग द बिहेवियर. It is almost always biologically, culturally and situationally well defined. So Maslow propounded the fulfill their needs, inadequacy and the deficit. The individual get motivated, organization provide the opportunity to fill this deficit. The novelty of the Maslow theory is that all the 5 needs do not motivate, but that is all the needs are not required. But Maslow proposed the concept of prepotency of the needs. Prepotency of the needs, which is organization, individual have multiple needs. Maslow categorizing the human needs into the 5 categories. The lower needs will include the physiological, safety, security. Middle order needs is the social and self-esteem. So the physiological needs synonymous with the biological and being like hunger है, thirst है. So natural calamities भी हो सकती है. Now there is a self-actualization, esteem, social security and the physiological. तो ये hierarchy of the needs was given here. And the words fulfillment of lower needs is recondition for the higher order needs. The initial stage physiological needs, then individual required food and water. ठीक है. फिर यहाँ पे social needs आएगा, esteem and self actualization. The social needs में environment आपको support कर रहा है. And recognition and challenges in the self esteem and the self actualization के अंदर आपको the individual does the work for the pleasure but individual love to work. That is the self actualization. Okay. अब है कि यहाँ पर basic needs होती हैं. So according to Maslow should ensure individual to their work manipulating needs. The manager should identify the individual with lower order needs are easy to control and the difficult level of the control increase with the increase order to the needs. So Maslow का ने सबसे पहले डिस्कस किया था फिजियोलॉजी, सिक्योरिटी, सोशल एस्टीम, कॉग्निटिव, एस्थेटिक, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, देन ट्रांजेशनल नीड्स. जो ट्रांजेशनल नीड मैग्रेगर की वो सबसे बड़ी नीड होती है. ठीक है.
So Maslow further remarked that hierarchy of need is not watertight compartment, but satisfaction is relative term. Emergence of a particular need after satisfaction lower needs is not sudden, but the need area are more often unconscious. The basic needs and desires are the same, and now there is the human behavior is multi-motivated. Behavior as such is not influenced by the single variable. All the human behavior can't be explained, but now Chapman जो थे, Alan Chapman is contemporary theories adopted the Maslow need hierarchy that was सबसे पहले cognitive, फिर aesthetic needs है, फिर transitional needs है. This need had been considered the Maslow, and he believed that these needs are inherent, but it is the Alan Chapman who explicitly clarified the needs, and the cognitive needs is need for the knowledge, aesthetic is for the beauty. तो यहाँ पे aesthetic needs है, aesthetic need जो है that is for the beauty, and balance of knowledge भी कह सकते हैं. The aesthetic needs and the competence needs, the transactional needs जो होती है that is referred to the meta motivated need. तो एक और नीड होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शनल नीड्स. दैट नीड इज द मेटा मोटिवेशनल, और ये कैसी है, मेटा मोटिवेशनल है, और मेटा मोटिवेशनल इज द हायर ऑर्डर नीड. ठीक है, तो ये कई बार पूछा भी जाता है. नाउ नेक्स्ट इज टू फैक्टर थ्योरी. द फ्रेडरिक हर्शबर्ग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग ऑफ मास्लो, डगलस मैकग्रेगर एंड क्रिस आर्गरिस. ही वाज अ सोशल साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं इसको, लाइक साइकोलॉजिस्ट ही थे ये हर्शबर्ग, एंड ही बॉट आउट द वर्क एंड नेचर ऑफ द मैन, द मोटिवेशन ऑफ द वर्क. And like other humanities, he also believed the motivation is multidimensional. Explain the theory of motivation is relation to the goal. He observed that individual enter into the organization. He analyzing the relationship between the meaningful experiences, and all the individual have this two set of needs. First is avoid the pain, and उसके बाद में individual should be enriched, उसको enrich होना है. So Hirschberg theory was known the motivational hygiene theory, product of the study about the 100 accountant. First is identification of the event which resulted job satisfaction. Second is identification of the event for job satisfaction. So इसमें एक टू फैक्टर थ्योरी है. फर्स्ट है हाइजीन फैक्टर, जिसमें आता है कंपनी की क्या पॉलिसी है, सैलरी एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स क्या है, और मोटिवेशन फैक्टर में अचीवमेंट्स, रिकॉग्नाइजेशन, वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है, so these are also referred the hygiene factor that is surrounded by the environment. This describes the relation with the context of environment. They are deficit factor, and these factor was satisfaction of this related to the job. Okay, now the Hirschberg was observed that both the factor was through this satisfier are critical, and the individual motivation grow from the satisfier. So now job is organized quite organization. यहाँ पे ड्यूल और यूनिपोलर, लाइक यहाँ पे एक ट्रेड थ्योरी होती है. तो ये जो ट्रेड थ्योरी है दैट इज बिलोंग्स टू डिफरेंट कॉन्टिनम. पहले है डिससेटिस्फायर, डिससेटिस्फायर, एब्सेंस ऑफ डिससेटिस्फायर. ठीक है, तो ट्रेड थ्योरी इज़ वेरी पॉपुलर. नाउ नेक्स्ट समिंग अप करेंगे हम हाइजीन को. दिस फैक्टर प्रोड्यूसिंग जॉब सेटिस्फैक्शन. ठीक है, एंड सेटिस्फैक्शन दैट इंक्लूड द मोटिवेशन ऑल्सो. डिससेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फायर आर डिफरेंट, मतलब सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन डिफरेंट होते हैं. दे आर नॉट अपोजिट एंड्स, बट दे आर रादर टू यूनिपोलर ट्रेट्स होते हैं. द मोटिवेटर और सेटिस्फायर हैव द मच मोर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द सेटिस्फाइंग behavior. The dissatisfied don't remain long, they need to be replenished frequently, and they are not self sustaining. मतलब जो dissatisfier है he was not self sustaining, therefore they are also known the maintenance factor. So हम hygiene factor को क्या बोलते हैं, we say this is the maintenance factor. Now this is hygiene seeker, this is motivated seeker. Hygiene seeker is motivated by the nature of environment. They are highly sensitive hygiene factor. They show little interest in the work and they realize little satisfaction. लेकिन जो motivated seeker होते हैं, they motivated by the job content. They are relatively more tolerant to the hygiene factor. ठीक है, दे आर अप्रिशिएटेड एंड एन्जॉय वर्क एंड दे रियलाइज अ ग्रेटर सेटिस्फेक्शन. सो द सक्सेसफुल हाइजीन सीकर जो होता है दे लीड टू द ऑर्गेनाइजेशन एज वेयर इट्स they instill their own motivated attitudes, and a hygiene seeker even after the fulfillment of the identify, and now there is a dealing with the worker. It is easy to motivate the hygiene seeker.
आप उसको अच्छे से मतलब मोटिवेट कर सकते हैं। फियर ऑफ हाइजीन डिप्राइवेशन दैन टू मोटिवेट टू टर्म ऑफ अचीवमेंट्स, मतलब आप उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दे रहे हो, अचीवमेंट्स दे रहे हो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि वो कन्वर्ट हो जाएगा मोटिवेटेड फैक्टर में। इन लॉन्ग रन दिस पॉलिसी इज़ इंजूरियस इम्पैक्ट बट देयर फॉर हर्जबर्ग ऑल्सो डिस्कस्ड। फिर हर्जबर्ग ने किसको डिस्कस किया था? ही डिस्कस्ड अबाउट द जॉब एनरिचमेंट। तो जॉब एनरिचमेंट वॉज डिस्कस्ड बाय हिम। जॉब एनरिचमेंट इज़ अ रिपीटेटिव वर्क लीड टू द मोनोटोनस लाइफ। इसका मतलब होता है कि आप डेली जो काम करते हो उससे मोनोटोनस लाइफ क्रिएट हो रही है, स्ट्रेसफुल एंड रिजल्ट टू द बोर्डम, दिस मे बी द हैंडल टू द जॉब एनरिचमेंट। तो आप क्या करोगे? उससे जॉब एनरिचमेंट करोगे एंड दैट वॉज द फ्रेडरिक हर्जबर्ग। द कॉन्सेप्ट हैज़ बिन सिग्निफिकेंटली ऑगमेंट। और ये रिचर्ड हैकमैन है, इन्होंने इसको डायरेक्शन दी थी, येल यूनिवर्सिटी के थे, इनका नाम है रिचर्ड हैकमैन, ठीक है, हैकमैन। सो जॉब एनरिचमेंट इज अ टेक्निक दैट वाज टू मैक्सिमाइज द इंडिविजुअल इंटरनल मोटिवेशन एंड प्रमोट द वर्टिकल लोडिंग। सो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द हॉरिजॉन्टल लोडिंग इज इंक्रीज्ड and instead of doing same job the individual should multitask job and have a more responsibilities. So now comparing the Maslow and Hertzberg, मास्लो की जो थ्योरी है ये थ्योरी ऑफ नीड से मोटिवेशन पर इम्पैक्ट होता है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम में आपका काम करना है। हर्ट्जबर्ग की थ्योरी गोल्स पर बेस्ड होती है एंड दैट वाज ओनली वन फैक्टर ऑफ द टू सेटिस्फायर एंड मोटिवेटर होते हैं। बोथ सेटिस्फायर एंड द डिससेटिस्फायर साइमल्टेनियसली ऑपरेशन एंड इन्फ्लुएंस बाय द बिहेवियर, ठीक है। सो द हाइजीन फैक्टर इन हर्ट्जबर्ग इंक्लूड द फिजियोलॉजिकल सिक्योरिटी, सोशल सेल्फ एस्टीम एंड मोटिवेशन फैक्टर के अंदर सेल्फ एस्टीम भी होता है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी होता है। नाउ द मैकग्रेगर गिवन द थ्योरी एक्स, थ्योरी एक्स में जो होते हैं एम्प्लॉय डिसलाइक करते हैं वर्क को, द वर्कर नीड टू बी द कंट्रोल्ड, द वर्कर आर अवॉइडिंग द वर्क एंड मोस्ट ऑफ द वर्कर प्लेस द सिक्योरिटी ऑल द फैक्टर। थ्योरी वाई में एम्प्लॉय कंसिडर वर्क एज ए नेचुरल एंड वर्कर लाइक टू एक्सरसाइज द सेल्फ डायरेक्शन। द एवरेज पर्सन लर्न एक्सेप्ट करना चाहता है एंड द एबिलिटी टू मेक द इनोवेटिव डिसीजन। सो थ्योरी एक्स वॉज अज्यूम टू द लोअर ऑर्डर नीड्स होती हैं, ठीक है, एंड थ्योरी वाई अज्यूम टू द हायर ऑर्डर नीड्स, जिसको सोशल एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, दैट इज़ द कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसमें फर्स्ट है ERG, मैकलेंड्स गोल सेटिंग, कोग्निटिव वैल्यूएशन, जॉब्स डिज़ाइन, इक्विटी, एक्सपेक्टेंसी एंड पोर्टर लालर की थ्योरी है। ERG थ्योरी में नीड ऑफ द एग्जिस्टेंस, नीड ऑफ द रिलेटेडनेस एंड नीड ऑफ ग्रोथ, मतलब ERG। मास्लो की जो थ्योरी है रियलाइजिंग इट मोर क्लोजली विद द एम्पिरिकल रिसर्च एंड मास्लो की जो नीड हायरार्की है दैट इज़ बिलीव इंडिविजुअल हैज़ अ मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं इसके। मास्लो 5 नीड्स हैव बीन सब्स्टिट्यूट द एल्डेल्फर की जो नीड्स थ्योरी है। So ERG theory is the more than one needs may be reported to the same time. Furthermore, this is not a finite sequence, but the individual enter into the organization to fulfill the needs. So it refers the frustration regression by Aldelfer. तो Aldelfer ने एक नीड दी थी जिसको हम फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन भी बोलते हैं, दैट इज फ्रस्ट्रेशन ऑफ हायर नीड कैन लीड टू द रिग्रेशन ऑफ द लोअर नीड, ठीक है। ये किसने दिया था? ये दिया था हमें Aldelfer ने, ओके। Now ERG theory is a consistent to the knowledge of individual and there is many factors such as education, family, environment and therefore the manager should try to identify the needs and they should work on the various needs accordingly. So ERG theory could be address the number of the missing links. मास्लो के अंदर जितने भी मिसिंग लिंक्स है उसको ERG थ्योरी ने बाद में क्या किया था? फुलफिल किया था, ओके। So this is ERG theory was more flexible than the rigid limited need hierarchy theory. अभी मैकलेंड की थ्योरी, so मैकलेंड की थ्योरी is associated with therefore theory motivated by the Maslow and Aldelfer and this is also known the achievements motivation theory. Need of the achievement that was the achieve the relation, need of the power that was make the behave what they wanted to behave, need of the affiliation, friendly relationship होना चाहिए, so that is personal responsibility, feedback and the moderate risk. According to the theory, individual who want to high risk, so factor low needs, on the contrary individual with high needs for achievement prefer the job situations and feedback. So individual with the high needs for achievement are individual oriented and the good leader of the enterprises as they seeks to the recognition. So वी एंड प्रमोट आई देयरफॉर, यहाँ पे एक नाच विद जॉब दैट अलाउ द ऑटोनॉमी प्रोवाइड द फीडबैक एंड दिस इज़ अबाउट द
एवरीथिंग। नाउ नेक्स्ट इज गोल सेटिंग थ्योरी है, ये है एडविन लॉक की। तो एडविन जो लॉक हैं इन्होंने दिया था गोल सेटिंग थ्योरी, दैट वाज इन 1960 में आ गया था, ठीक है। 2 ग्रुप होते हैं और यहाँ पर 1 ग्रुप आर आज द बिल्ड द ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक एंड द ग्रुप वाज नॉट गिवन, बट नाउ द सेकंड ग्रुप जो होगा आज द बिल्ड ब्लॉक एंड द ग्रुप अप टू 21 लेयर्स तक इसको बनाना है एंड द फर्स्ट ग्रुप आर इन्फोर्स्ड, सेकंड ग्रुप बिल्ड इन द 21 लेयर्स एंड the first could be in the 25 layers, and Edwin observed that the specific and difficult goals with provision for lead to the high performance. जैसे जितने difficult goals बनाओगे उतना ही performance आपकी बढ़ेगी। He focused certain characteristics like goal, कुछ goal होंगे, self efficacy होगी, task होगी, structure होगा, ठीक है। So this is the how he is capable to perform this structure. Self efficacy could be high or low. In difficult situations, self efficacy will lead to the more motivated and try to the master the challenges. So structure when it is simple rather than complex, well learned rather than novel, and interdependence motivation. So individual is more committed to the job and that individual have the internal focus. Now this is the यहाँ पे individual है personal responsibility, feedback and the moderate risk. So reinforcement theory is the goal setting theory, which is the behavior is the function on its consequences. Goal setting theory observed the perception of individual emerges and self reinforcement. So now there is a cognitive evaluation. Cognitive evaluation was individual full the commitment enthusiasm. Individual is required to government work with the same enthusiasm. So the cognitive theories observed the allocation or the introduction of the rewards and behavior that has been rewarding to decrease the overall level of motivation. The impact of intrinsic factor, that interrelationship of both factor. This is the concept of Herzberg, and the theory explained those phenomena that was recruited the permanent employee. So that was explained the role of the extrinsic factor and major role played by the individual, and that was new tasks are important, but the pay and supervision which extrinsic factor. It was found through the intrinsic factor, that is motivate करते हैं हमको, तो मोटिवेशन करने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं दैट इज़ लाइक एनवायरनमेंट हो सकता है या हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो कैसे वो सक्सेसफुल होगी। सो देयर फॉर हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन द मोटिवेशन सीकर आर टोलरेंट टू द वैल्यूज फॉर द इंट्रोड्यूस्ड। नाउ द जॉब डिज़ाइन थ्योरी, मास्लो, मैकग्रेगर एंड हर्ज़बर्ग। तो ये तीनों ही हैं MMH, मास्लो, मैकग्रेगर एंड हर्ज़बर्ग। इन्होंने क्या दिया था, जॉब को डिज़ाइन करने की थ्योरी। सो दैट वाज आल्सो सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इट वाज अ जॉब डिज़ाइन थ्योरी एंड एलिमेंट फॉर दिस इज सोर्स ऑफ मोटिवेशन। इट आउटलाइन सर्टेन jobs key of the explaining the motivation, and this is job could be influencing by the individual. So job design theory explain the motivation. A job can be described in term of 5 core dimension. स्किल है आपके पास, एंड टास्क है आपके पास, ऑटोनोमी है, फीडबैक है। सो स्किल वेराइटी इज़ अ डिग्री टू विच जॉब रिक्वायर्ड एंड एन ओनर ऑफ द गैरेज वू डज द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वर्क। टास्क को आप आइडेंटिफाई करोगे, देन इलेक्ट्रिकल फैन, मतलब ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि आप कैसे जॉब डिज़ाइन कर रहे हो, हाउ कैन यू अप्लाई ऑन दैट। तो यहाँ पे कोड होते हैं जॉब के, स्किल, टास्क एंड ऑटोनॉमी एंड फीडबैक, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी आएंगे, जैसे कि आप एक्सपीरियंस है आपके पास, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, नॉलेज है आपके पास, ठीक है। तो एन इंडिविजुअल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकम ए मोटिवेट व्हेन ऑल 3 साइकोलॉजिकल स्टेट्स आर प्रेजेंट, स्किल, टास्क एंड टास्क, ये सब इम्पोर्टेंट है। ना उसके बाद में है सोशल इन्फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ मॉडल, दैट वाज जॉब डिज़ाइन थ्योरी डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट वेरिएबिलिटी, बट it is under the characteristics of SIP model observed, and that was value for the social influences is important. Equity theory जो थी that was एडम की थी, स्टेसी एडम ने दिया था equity theory, and this was on the theory of the motivated formulate Herbert, Simon and Bernard. According to the theory, the individual enter into the organization to contribute, but contribute is a contingent, so the individual may experience equity depending upon the relation between the satisfaction. तो इक्विटी का मतलब होता है आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन सेटिस्फेक्शन, दैन कंट्रीब्यूटिंग करना है हमको, सेल्फ इनसाइड, सेल्फ आउटसाइड, अदर आउटसाइड, तो आउटकम कितना है आपका, इनपुट कितना है,
ठीक है, देयर कैन बी अ सिचुएशन ऑफ द लैक ऑफ मोटिवेशन बट चेंजिंग इन द इनपुट व्हेन देयर इज अ अंडर रिवार्ड. सो नाउ देयर वाज ए changing of the output where there is a reward for the situation of the output. Now यहाँ पे एक और थ्योरी आई है that is known as the एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने दी थी? दिस इज़ वाइडली यूज फॉर द मोटिवेशन. विक्टर ब्रूम की थी ये. तो विक्टर ब्रूम ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी थी एंड दैट वाज अकॉर्डिंग टू थ्योरी स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन डिपेंड ऑन गोल्स एंड द परसेप्शन ऑफ द अटेनिंग द गोल. तो यहाँ पे इंडिविजुअल होगा, उसके क्या परफॉर्मेंस है, रिवार्ड्स कितने मिले, उसके गोल्स क्या हैं. ठीक है, सो दैट इज एफर्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस, रिवार्ड्स एंड पर्सनल गोल्स. सो द इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड वेयर ऑल द थ्री इक्वेशंस आर पॉजिटिव. एफर्ट्स, performance, the individual has positive disposition and now the effort should be contingent to the performance, rewards, relationships and now there was a degree of which the individual believed to performing, rewards, personal goal, relationship. So key of expectancy theory is to understand the individual goals and linkages and performance and rewards are that was the goal satisfaction. So this is all about the theory was the similarity और humanistic theory भी कहते हैं. Valence, instrumentality and the expectancy, that is the Victor Bloom theory. Valence, instrumentality and the expectancy. Valence का मतलब होता है the strength of individual preference attaining the goal and expectancy का मतलब होता है effort related to achieving the first level outcome and instrumentality का मतलब होता है first level outcome leading to the final outcome. So the Porter-Lawler theory, that was the number of the theory deal with the expectancy, also one of them, and that was the expectancy. Porter-Lawler considers the efforts, performance and the rewards and now ability to perform. Porter-Lawler की जो theory है वो actually expectancy पर ही based है. इसमें आपकी एबिलिटी कितनी है एंड रोल क्या है, क्लियरली गोल्स हैं या नहीं है. सो परफॉर्मेंस रिजल्ट इनटू द एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक रिवार्ड्स एंड दिस इज एक्सप्लेन हाउ द इक्विटेबल रिवार्ड्स हमें मिल रहे हैं. ओके, सो दैट वाज पोर्टर-लॉलर की जो थ्योरी है. इट इज़ थ्योरी हैव सिंप्लीफाइड मोटिवेशन डिपेंड अपॉन बट पोर्टर-लॉलर आउटलाइन द रिलेशनशिप विद द सेटिस्फैक्शन एंड द परफॉर्मेंस. नाउ थ्योरी ऑफ लीडरशिप्स हैं कुछ. तो थ्योरी ऑफ लीडरशिप इज़ ए टू टर्म. इसमें पहला टर्म होता है कि मैनेजमेंट हैज़ ए मोर टू डू विद द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमर्जेस ए ग्रुप ऑफ फॉर्मल अपॉइंटमेंट्स. ए नंबर ऑफ द एफर्ट्स हैज़ बीन मेड टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल लीडरशिप एंड दिस इज द ट्रेड थ्योरी. ट्रेड थ्योरी वॉज कंसिडर्ड द पर्सनल क्वालिटीज़. आप में कुछ लीडर में कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ एंड द इंडिविजुअल वो process defined as set of the leader for the defined leadership traits considered the common to all leader. These are the basic assumptions. An individual has the birth great leader born with not made. This is the referred the great man theory and the leadership is characterized by the Mahatma Gandhi and Nelson Mandela. An individual has the लीडर ऑफ वर्च्यू, लाइक ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो कि महात्मा गांधी हैं, नेल्सन मंडेला हैं. सो दैट इज़ बेस्ड ऑन द ट्रेड थ्योरी एंड द ट्रेड थ्योरी इज फोकस्ड ऑन द वो लीडर एंड what he is do dynamic of the leadership. Okay, now next one is the behavioral theory. Behavioral theory में आता है it is rejected the trade theory and now there is a यहाँ पे कुछ स्कूल्स हैं. ओहियो स्कूल है, मिशिगन स्कूल है, मैनेजरल ग्रिड थ्योरी है. ओहियो स्कूल वाज गिवन द ब्यूरो ऑफ बिजनेस रिसर्च बेस्ड ऑन बट मोस्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव. इसमें इनिशिएट करेंगे एक्सटेंड टू विच द लाइकली टू डिफाइन द स्ट्रक्चर कंसिडरेशन. Ohio school was leadership and they tried to identify most of the leaders and that is they did not further study but across all the circumstances. University of Michigan was ये भी लीडरशिप की थ्योरी है. यहाँ पे एक ओहियो स्कूल में जो डन किया गया उसके बाद की थ्योरी है. इसमें लीडरशिप का बिहेवियर और प्रोडक्शन कितना हो रहा है. सो एम्प्लॉयज़ अगर एम्प्लॉय ओरिएंटेड होगा तो प्रोडक्शन हाई होगा और अगर वर्क प्रोडक्शन ओरिएंटेड होगा तो ये एम्फेसिस टास्क का एस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द जॉब. ठीक है, तो अगर हम एम्प्लॉय पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो इससे आपकी ये एड्रेस करेगा सबऑर्डिनेट्स की जितने भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होंगे वो अच्छे होंगे. प्रोडक्शन ओरिएंटेड में आपके टास्क को बढ़ावा देंगे. द स्टडी कंक्लूडेड एम्प्लॉय ओरिएंटेड आर मोर प्रोडक्टिव. मतलब आपने एम्प्लॉयज़ पर ज़्यादा ट्रस्ट किया है ना तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपने टास्क पर इम्पोर्टेंस दिया है ना, दैट इज़ नॉट प्रोडक्टिव. ठीक है, मैनेजरल ग्रिड थ्योरी किसकी थी? ब्लैक एंड मार्टिन की थी. इन्होंने केम आउट किया था मॉडल दैट इज़ लीडरशिप ग्रिड.
इसको हम ग्रिड मॉडल भी कहते हैं। एंड दिस इज द डेवलप द ग्राफिकल पोर्ट्रेट एंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द ग्रिड। यहाँ पे 9 मैट्रिक्स होते हैं एंड दैट इज ओहियो स्कूल वी कैन से। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रूवराइज तो 1-1 की सिचुएशन में है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे। कंट्री क्लब में 1-9 की सिचुएशन में, लाइक यहाँ 1 है तो यहाँ 9 है। कंट्री क्लब का मतलब होता है लेजर टाइप एंड लीडर शुड कंसर्न द पीपल। अगर लीडर जो है वो पीपल से कंसर्न कर रहा है। टास्क ओरिएंटेड ये वाला हो गया टास्क ओरिएंटेड, ठीक है। टास्क ओरिएंटेड में क्या होता है, हाईली ऑथोरिटेरियन होता है। टीम में आएगा 9-9, मतलब आप यहाँ और यहाँ एग्जैक्टली, ओके। सो दिस टीम वाला जो है ना, इसमें बहुत सेंसिटिव हैं आप वर्क के प्रति। और मिडिल, ये वाला मिडिल है, इस मिडिल में आप इंटरमीडिएट लेवल पे वर्क कर रहे हैं। स्कैंडिनेवियन स्टडीज़ जो हैं, स्वीडन द स्टडी इज रिव्यूड द ओहियो स्कूल एंड नाउ देयर इज अ लीडर हु इज डेमोन्स्ट्रेट द डेवलपमेंट ऑफ द बिहेवियर एंड ऑल बिहेवियरल थ्योरी लाइक द ट्रेट थ्योरी या फिर कोई भी थ्योरी होगी, दे आर फेल टू डू सो, बट द ट्रेट इज बिहेवियरल थ्योरीज आर बिलीव इन द यूनिवर्सलिटी दिस थ्योरी एंड दैट वाज ओके। नाउ कॉन्टीजेंसी मॉडल में फिडलर है, हर्से ब्लैंचार्ड है, पाथ गोल थ्योरी है, 2 डायमेंशनल है, टेनेनब्रॉम शिट एंड द हैंडी की है। तो बाय 1960 बिहेवियरल थ्योरी रिजेक्टेड, नंबर ऑफ द स्कॉलर टुक अप द स्टडीज एंड दीज ग्रुप थ्योरी केम आउट विद द कॉन्टीजेंसी एंड इक्विफिनलिटी लाइक काइंड ऑफ। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेड फिडलर की थ्योरी पे आते हैं, इसको हम कॉन्टीजेंसी मॉडल बोलते हैं। The model is first comprehensive contingency and the model stated the effectiveness and dependent on the proper match of the style of the leader. So leadership style में LPC है, identify the fiddler, created the perform the preferred the co-worker. He found the least preferred co-worker and that was such leader with the high LPC score relationships. Now next is the nature of the situation, leader member relationship, that हाउ ट्रस्ट कॉन्फिडेंस है उसके पास, प्ले क्रिटिकल रोल इन डिटरमाइनिंग द इफेक्टिव लीडर, टास्क स्ट्रक्चर दैट वाज द जॉब असाइनमेंट्स एंड पोजीशन एंड पावर इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो नाउ डिसिप्लिन होना वगैरह। सो सबसे पहले टास्क होगी, देन यहाँ पे फेवरेबल, अनफेवरेबल और मॉडरेट सिचुएशन। इस तरीके से इसने मतलब फिडलर ने कॉन्टीजेंसी थ्योरी को समझाया। तो सिचुएशंस या तो एक्सट्रीमली अनफेवरेबल होगी या तो एक्सट्रीमली फेवरेबल होगी या फिर मॉडरेट होगी, ठीक है। और इसका रिलेशनशिप्स भी बताया है। दैन उसके बाद में लीडर्स हु आर लो LPC टास्क ओरिएंटेड होते हैं एंड लीडर हु हैव द हाई LPC, सो दिस इज रिलेशनशिप बेस्ड पे होंगे, ठीक है। तो कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी आई थी, दैट वाज अ थ्योरी फोकस्ड ऑन द लीडरशिप एंड जोजिया गार्सिया ने कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। ये किसने दिया था, गार्सिया। फिडलर और गार्सिया ने मिलकर के कॉग्निटिव थ्योरी दी एंड एज पर दिस इंटेलिजेंट लीडर परफॉर्म द बेटर एंड रिलैक्स एनवायरनमेंट में वो वर्क करेगा। हर्से एंड ब्लैंचर्ड की थी सिचुएशनल थ्योरी। पोल हर्से ब्लैंचर्ड इज गेन द स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट इन नंबर ऑफ द कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप्स एंड दैट वाज द Hersey and Blanchard was given the identify the 2 factors, job and the psychological maturity, and the job maturity is the ability to individual to deal and the individual should possess the requisite skills and ability. So सबसे पहले maturity level में usable to unwilling, फिर unable to willing, able to willing, फिर unable to willing, that is the maturity level. Telling, selling, participating and delegating. आप बोल रहे हैं टेल, देन सेल करेंगे, देन पार्टिसिपेट करेंगे आप वहाँ पे, लास्ट में आप डेलीगेट करेंगे, ठीक है। टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग एंड दैट वाज गिवन बाय द हर्सी एंड द ब्लैंचर्ड। सो M1 इज कम्पेयर टू इन्फेंट स्टेज। इन्फेंट स्टेज में क्या होता है, लीडर जो होता है वो सबऑर्डिनेट होगा। M2 में स्टेज होती है जो कि लिटिल ग्रोथ होगा उसका चाइल्ड का, ठीक है, एंड दैट इज़ द सेलिंग हो गया। M3 इसके में क्या होता है, पार्टिसिपेशन होगा, मोटिवेशन बढ़ जाएगा। M4 में डिलीगेशन कर देंगे, पार्टिसिपेटिव वर्क को किसी और को डिलीगेट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉग्निटिव थ्योरी। अगली है पाथ गोल थ्योरी। पाथ गोल थ्योरी कंसिडर टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडल एंड इनिशियली डेवलप्ड बाय द इवान एंड हाउस। ये किसने दी थी, इवान एंड रॉबर्ट हाउस ने दी थी। एंड दिस इज द थ्योरी इज एग्जैक्टली एलिमेंट ऑफ द ओहियो स्कूल एंड दैट वाज विक्टर ब्रूम की जो थ्योरी है वो मोटिवेशन की है। इवान एंड हाउस ने ऑब्जर्व किया था कि
encourage the initiative of the part of subordinate. The essence of theory is the leader should be able to provide the follower information and achieve the goals. तो यहाँ पे कुछ goals हैं, फिर medium है जिससे कि आप goal को achieve करेंगे, attractiveness है, perception है, situation वो होती है the goal is not clear, it is difficult to establish tools and techniques. नेक्स्ट सिचुएशन 2 जिसमें आप प्रोग्राम रिपीटेटिव हो सकते हैं, कैसे आप डील करेंगे. सिचुएशन 3 टास्क इज़ क्लियर एंड नॉन रिपीटेटिव है. तो सिचुएशन 3 में क्या है, नॉन रिपीटेटिव है. सिचुएशन 2 में रिपीटेटिव है. सिचुएशन 4 में टास्क इज़ क्लियर नॉन रिपीटेटिव बट डिग्री ऑफ क्लैरिटी इन द गोल्स. यहाँ पे एक ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. तो दिस इज़ अ पाथ गोल थ्योरी एंड ये किसने दिया था, ये दिया था इवांस एंड हाउस ने दिया था. तो टास्क इज़ नॉट क्लियर, रिपीटेटिव क्लियर, क्लियर बट नॉट क्लियर प्रिविजन. लीडरशिप स्टाइल में डायरेक्टिव, सपोर्टिव, अचीवमेंट एंड पार्टिसिपेटिव. सबसे पहले आपको डायरेक्ट किया जाएगा, फिर आपको सपोर्ट दिया जाएगा, फिर आपने क्या अचीव किया है, लास्ट में आपको पार्टिसिपेशन दिया जाएगा. 3 डायमेंशनल मॉडल में मिशनरीज एंड कंप्रोमाइज करते हैं, रिलेटेड, इंटीग्रेटेड एंड द डेवलप्ड द मिशनरीज. सो दिस रेडिन एक्सेप्टेड द कॉन्टीजेंसी थ्योरी. तो एक यहाँ पे रेडिन है, इनकी थी 3 डायमेंशनल थ्योरी. ठीक है, तो इन्होंने कॉन्टीजेंसी को ही मतलब बेस बनाया अपना. एंड बेसिक लीडरशिप स्टाइल दैट इज डिफरेंशिएटेड, सेपरेटेड, इंटीग्रेटेड एंड दैट वाज द सेपरेट टाइप ऑफ द लीडर्स एंड लाइकवाइज द लीडर विद द हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड रिलेटेड टू द दिस लाइक इज रेडिन ने दिया था. दैट वाज अ ब्लैक एंड माउंटेन की मैनेजरल ग्रिड थ्योरी थी. ठीक है, रेडिन की 3 डायमेंशनल. नाउ है टेनेनब्रॉम एंड श्मिड. टेनेनब्रॉम श्मिड की जो थ्योरी थी दैट वाज अ टेलिंग, सेलिंग, कंसल्टिंग एंड जॉइनिंग. एंड ये किसकी थी, टेनेनब्रॉम की थी. एंड दैट वाज अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस. नाउ द टेल करना है, देन इसको सेल करना है, देन कंसल्ट करना है, देन आप उसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे. ठीक है, उसके बाद में मैनुअल जॉब एंड स्किल्ड होती है. स्किल्ड में नॉन रिपीटेटिव, जॉइन, इंटरमीडिएट में सेल. हैंडी और बेस्ट फिट थ्योरी दी थी. तो हैंडी क्या थी, बेस्ट फिट थ्योरी. हैंडी की क्या थी, बेस्ट फिट थ्योरी. बेस्ट फिट थ्योरी जो आई थी दैट वाज ऑर्गेनाइजेशन की क्या सिचुएशन है, इक्विफिनिटी आ रही है या नहीं आ रही है. ठीक है, ये हो गई पूरी कंप्लीट आपकी, ये चैप्टर 3 आपका कंप्लीट.